आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पार्ट 12 समरी एंड हिस्टोरिकल नोट्स। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस टॉपिक, दिस चैप्टर. So what are the summary what we have studied in this chapter? That is the domain and ranges. Principal value branches of inverse trigonometric functions are given in the following table. ये आपको domain और range, जिस range में principal branch values हैं सिर्फ, अब फंक्शन, डोमेन एंड रेंज, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो 6 फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड इनके डोमेन और रेंज है, जो कि ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बेसिस पे डिसाइड किया गया है उनके डोमेन और रेंज से. बट यहाँ उनका जो रेंज डोमेन होता था उसको यहाँ छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड किया गया, जिसमें ये बाइसेक्टिव फंक्शंस थे जहाँ पे इनका इन्वर्स डिफाइन होता है, और उसी में से एक इंटरवल को प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ली गई है जो यहाँ समराइज्ड है सभी. अब ये ज़रूरी है आपको याद रखना, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद साइन एक्स ऑफ होल इनवर्स. ये दोनों सेम नहीं है, जो कि साइन एक्स का पावर -1 करेंगे तो 1/sin x वो उसका रेसिप्रोकल होगा, जो कि कॉसेक इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा. The value of an inverse trigonometric function which lies in its principal value branch is called the principal value of that inverse trigonometric function. अब ये आइडेंटिटीज़ हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ समराइज किया गया है. तो आप एक एक करके y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, देन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन वाई, x साइन वाई, देन y इज साइन इनवर्स x. ये सभी आइडेंटिटीज़ हैं जो समराइज की गई हैं. यहाँ पे देख सकते हैं आप इनको, सभी ऑलरेडी आपने यूज़ किया है, पढ़ा है, और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए यहाँ ये सब दिया गया है कि आप इनको आसानी से जल्दी से देखें और याद रखें. बहुत सारे हैं भी नहीं, क्योंकि समरी में जो दी गई हैं वही हमने यहाँ लिया है. नाउ द हिस्टोरिकल नोट्स, ये सभी आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि डेवलपमेंट कैसे हुआ रिलेटेड टू द टॉपिक. अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कहाँ से इवॉल्व हुए, कहाँ से ये डेवलप हुए, किनका कंट्रीब्यूशन है, तो ये लगभग एनसीईआरटी के हर टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के लास्ट में जो है कुछ हिस्टोरिकल नोट्स रहते हैं जहाँ ज़रूरी है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है. सो वी शुड नो दैट. सो व्हाट आर द हिस्टोरिकल नोट्स? द स्टडी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया. द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस आर्यभट्टा 476 AD, ब्रह्मगुप्ता 598 AD, भास्करा 1 600 AD and Bhaskara 2 1114 AD got important results of trigonometry. All this knowledge went from India to Arabia and then from there to Europe. The Greeks had also started the study of trigonometry, but their approach was so clumsy that when the Indian approach became known, it was immediately adopted throughout the world. In India, the predecessor of the modern trigonometric functions, known as the sine of an angle, and the introduction of the sine function represents one of the main contribution of the Siddhantas, Sanskrit astronomical works, to mathematics. Bhaskara 1 about 680 gave formula to find the value of sine functions from angle more than 90 degree. A 16th century Malayalam work, Yukti Bhasha, contains a proof for the expansion of sine a plus b. Exact expression for sines or cosines of 18 degree, 36 degree, 54 degree, 72 degree, etc. were given by Bhaskara 2. The symbols sin inverse x, cos inverse x, etc. for all sin x, arc cos x, etc. were suggested by the astronomers John F. W. Herschel 1813. The name of Thales about 600 BC is invariably associated with height and distance problems. He is credited with the determination of the heights of a great pyramid in Egypt by measuring shadows of the pyramid and an auxiliary staff or ergonomon of known height and comparing the ratios. Capital H by capital S is equal to small h by small s, that is tan sun's altitude, मतलब sun's altitude का जो एंगल है उसके साथ tan theta. Thales is also said to have calculated the distance of a ship at sea through the proportionality of sides of similar triangles.
Problems on height and distance using the similarity property are also found in ancient Indian works. So this was the historical notes and very informative. So you should listen this या read this, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं इनको, बिकॉज ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है. कहाँ से शुरुआत हुई, कौन कौन इसमें कंट्रीब्यूट किया, ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ फार्मूले और क्वेश्चंस ही बनाएं, ये सब जानना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, बट ऐसे फॉर द नॉलेज यू शुड रीड दिस एंड रिमेंबर. थैंक यू वेरी मच for completing this chapter.